back all of you. Now next thing which is a coverage. Coverage is very important. Actually whatever the efforts that you have put in a verification as a verification engineer, all matters when it is reflected in a coverage. So coverage is simple as a report card. It is something like that your mark sheet. Okay. So sometimes it may happen that you have put lots of effort for a particular subject, but at the end when it comes out in a mark sheet, and if it appears that it is 15-20 marks out of 100, then probably nobody will recognize that it any effort that you have put, or maybe it is not being reflected at least in a report card. Okay, so similar thing is that whatever we have done till now, that we have written a assertion to ensure that it should verify the design. Maybe we have randomized the thing, and we have done some sort of clever randomization with the constraint that it should cover all the scenario. But ultimately, it should be reflected in a coverage. Okay, so whenever you go for an industry, whenever your manager asks you to do a verification of particular design, then at the end he would like to see that what is the coverage that you are getting. Okay, so when you go for a directed approach, probably yesterday we discussed about that for that full adder or 1-bit adder, what we are defining, that only 8 scenario, 2^3 directed cases where you can manually write all these 8 scenario, and you can actually consider that it is 100% all the scenario are covered. But coverage plays a crucial role when you are doing a randomization. Now in a randomization, we don't know that how many inputs are being covered. Okay, at least we should identify that what are the important cases. As we discuss कि इनपुट कोई भी एक वैल्यू 1 होनी चाहिए. अगर मेरा 64 बिट इनपुट है तो उसमें से कोई भी एक बिट वैल्यू 1 होनी चाहिए. अभी फॉर अ हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू आपका फर्स्ट बिट 1 है या 64 बिट 1 है, उसके लिए तो वही है कि आउट ऑफ 64 बिट 1 बिट 1 है. उस टाइम पे हार्डवेयर का बिहेवियर होगा वो सेम रहेगा, या तो 1 बिट 1 है या 64 बिट 1 है या इन बिटवीन 30 कोई बिट 1 है. तो 1 से लेके 64 बिट तक कोई भी अगर बिट 1 है तो उस टाइम पे हार्डवेयर का परफॉर्मेंस सेम रहेगा. ठीक है. सिमिलरली 2 बिट 1 है तो 2 बिट 1 में पहला दूसरा है या फिर 63 64 है या फिर 30 और 64 है, तो हार्डवेयर के लिए तो 2 बिट 1 है. ठीक है. सो दिस ऑल सिनेरियो प्रोबेबली वुड लाइक टू चेक इट आउट कि मेरा 1 बिट 1 वाला सिनेरियो चेक हुआ है कि नहीं, मेरा ए के लिए ऐसी कोई वैल्यू रैंडम जनरेट हुई है कि नहीं कि जिसमें 1 बिट 1 हो, जिसमें 2 बिट 1 हो, जिसमें 3 बिट 1 हो. लाइकवाइज इट कैन गो अप टू ऑल 64 बिट 1 हो. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि मैं चेक करना चाहता हूं कि जब मेरे 64 बिट है उसमें से एक सिनेरियो ऐसा भी है कि जिसमें 32 बिट 1 होंगे, 32 बिट 0 होंगे, तो वो सिनेरियो कवर हुआ है कि नहीं, वो कवर हुआ है कि नहीं वो चेक करना है. सो दैट हैज टू बी डिफाइंड इन द कवरेज. ठीक है. सो कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट and ideally it is considered to be your report card of whatever the verification effort that you have put in. And even when you are serving as a verification engineer to somebody, and somebody has given you a design to verify it, so at that time he will first look at the coverage. Okay. Now when you go for a randomization, then 100% coverage is exceptional case. Most probably you will not get the 100%, because 100% that means that all the possibility are being covered. But we are not going for a directed approach, then it is not required that it should be 100% coverage. Okay. But what are the important points that has to be defined, that has to be covered surely. Okay. So usually coverage
may go up to 98%, 99% coverage considered to be a very good one. Okay, it depends upon what is your design and how many scenario that you need to verify. But coverage anything above 95% could be acceptable. Okay, of course it will vary for design to design. Now we will see that how you can actually write down that. Now what is the coverage? Coverage is basically capture the result from a random simulation. So coverage is associated when I go for a random, because when I go for a directed, then no need to identify the coverage, because it is 100% always. Okay, so try to understand this. Because of the randomization, this coverage comes into the picture. Whenever you are verifying maybe a 3-bit adder, or maybe a counter, or maybe in one case majority voting, sir has given you example. So at that time the total number of possibility for an input is very limited, and we could cover it manually also. So at that time we are not going for a randomization, and there is no need for having a coverage. Okay, so for a small design there is no need to worry about the coverage. So for a directed cases only you can ensure that all the scenario are being covered. So coverage, when you consider, then beans is very important. Beans is a value that we will see. Okay, and transition of the input value, that also we will see. So in a coverage, ultimately beans are there and transitions are there. So to define a coverage, basically I am defining a cover group. Okay, inside the cover group you have some cover point. Cover point you can consider a particular scenario that I would like to check it out. Okay, so cover group is a keyword, cover point is a keyword. So cover point is a subset of a cover group. Okay, in a one particular cover group you can have a multiple cover point. So that also we will see that how you can do it. Now coverage feature. So coverage can be of variable or it can be expression. Okay, so coverage आपका variable भी हो सकता है, it can be expression or it can be transition also. Cross coverage is also possible. Cross coverage is when I want to verify two variable relation, where for a one variable the relation of the second variable is being covered or not. So automatic and user defined beans are also there. Beans in a particular value. Okay, that we will see. So filtering is also possible. Sometimes I can enable and disable the coverage also. That is also possible, like assertion. In a coverage, you can have a event sequences as well as a procedural block. So that we will see more in detail when we talk about the example. Now cover group. So cover group is a construct which encapsulates the specification of the coverage model. Each cover group specification can include the following component. Clocking event that synchronizes the sampling cover point. So that is basically related to cover point. You need to consider a cover point. That cover point is important part inside your coverage. It can also consider a cross coverage between the cover point. So where you have a multiple cover point, then for that cover point you are interested in a cross coverage. There can be a different coverage option also, that we will see. Now whenever you are defining a coverage, then coverage can be defined with a keyword cover group. So cover group and n-cover group is a inbuilt keyword. So that's why it is being written as a bold one. And this CG is the name of a cover group. Okay, so the keyword is a cover group and n-cover group, and in between you are writing all different scenarios. And this CG is name of a cover group, which is a user defined. Now cover group can contain one or more cover point. Okay, as I said that cover group के अंदर cover point आएगा. A coverage point can be integral variable or integral expression. आपके cover point जो cover group के अंदर cover point आता है, वो cover point it can be one simple variable or it can be expression also. Okay, so as a cover point, variable is also valid one, or maybe you can define a condition that is also valid one.
A coverage point creates a hierarchical scope, can be optionally labeled. So that can be labeled also. Okay, not necessary, but usually labeling will identify the different cover point. That we will see that. If labeling specified, then it designate the name of the cover point. तो cover point को हम लेबल भी दे सकते हैं जिससे हम कवर पॉइंट को डिफाइन कर पाए. सो यूजुअली लेबल देना अच्छा रहता है क्योंकि इससे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ. अगर इन फ्यूचर आपको कोई कवर पॉइंट के ऊपर जाना है या फिर अगर आप इसका रिपोर्ट जनरेट करते हो, देन थ्रू अ लेबल इट कैन बी इजीली डिस्टिंग्विशेबल. ठीक है, अदरवाइज कवर पॉइंट बहुत सारे होंगे तो हर एक कवर पॉइंट को डिफरेंशिएट करना मुश्किल रहेगा. तो हर एक कवर पॉइंट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए जिसकी वजह से आप मींस उसको लेबल देना चाहिए. जैसे कि आप हर एक पार्टिसिपेंट्स का नाम तो है लेकिन हर एक पार्टिसिपेंट्स का हमने एक यूनिक आईडी भी जनरेट किया है. जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब हमने आपको यूनिक आईडी दिया है. ठीक है, सो व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दैट कि इन फ्यूचर if you can attend any another course, then we can easily fetch your details which you have provided earlier with that unique ID. Okay, so labeling is something related to you are providing a simple ID to that cover point. Now we will see the example. Okay, so these examples are very important. Now I am writing one program. Program is a keyword where I am writing. It can be module also. Okay, there is no, but usually we are writing a program because this is a verification. Okay, when I am talking about the hardware, then I am using a module keyword. Just try to be clear in mind. Okay, मॉड्यूल जब होगा तब मैं हार्डवेयर की बात करूंगा और मॉड्यूल में जब भी when I use a module then there is a concurrency. Usually when I talk about the verification, then verification में concurrency नहीं होती, verification में तो sequential nature ही होता है. ठीक है, so that's why I can write it down as a program. So program is also keyword where the sequential behavior is can be executed. So program, then there is a name of a program. Now I am defining y as a 3-bit. Okay, so y is a 3-bit and then I am defining this syntax. Now probably means if you have followed the Ravi sir lectures carefully, then at that time he also talk about concept of dynamic array in system Verilog. Okay, so when I talk about the your Verilog, then there is a concept of the fixed size array. ठीक है, जिसमें आपने एक बार साइज डिफाइन कर ली तो वो साइज फिक्स रहेगी, वो साइज फिर कभी चेंज नहीं होगी. अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा एरे ए जो है वो 64 बिट का है तो थ्रू आउट माई प्रोग्राम इट कैन बी 64 बिट ओनली. बट इन अ सिस्टम वेरिलॉग देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक एरे. डायनेमिक एरे दैट मींस कि रन टाइम पे आप उस एरे की साइज को चेंज कर सकते हो. सो देयर आर 3 सच काइंड ऑफ डायनेमिक एरे आर देयर इन आवर सिस्टम वेरिलॉग: डायनेमिक एरे, एसोसिएटिव एरे एंड क्यू. ठीक है, तो क्यू आपका एक वन डायमेंशनल एरे है, डायनेमिक एरे, कि जिसमें आपके होमोजेनियस एलिमेंट होंगे. होमोजेनियस एलिमेंट दैट मींस कि उसमें आपके सारे जो वेरिएबल होंगे, ये 3, 5, 6, ये 3, 5, 6 जो है उसका डेटा टाइप सेम होगा. दैट मींस आइदर इट कैन बी अ इंटीजर, it can be a 4-bit vector, it can be a unsigned value. तो ये जो वैल्यू होगी 3, 5, 6 वो आपके होमोजेनियस एलिमेंट होंगे. वो 3 भी आपका जो होगा, अगर आपकी वैल्यू कोई भी डिफाइन करती हो ये पर्टिकुलर क्यू में, ये डॉलर का सिंबल जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करूंगा दैट इज अ क्यू टाइप ऑफ डायनेमिक एरे. ओके, ये मेरा डायनेमिक एरे क्यू है. आई थिंक समबडी इज आस्किंग. ओके, हाँ, ओके, सो दैट इज अ क्यू काइंड ऑफ डायनेमिक एरे. अभी जो क्यू डायनेमिक एरे टाइप है उसमें आपके जो एलिमेंट है वो होमोजेनियस रहेंगे. दैट मीन कि उसका डेटा टाइप सेम रहेगा, उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता. तो मैंने यहां पे क्यू डिफाइन किया है जिसमें 3, 5, 6, दैट मीन्स ये जो वैल्यूज है दैट इज द नेम ऑफ अ क्यू. वो वैल्यूज में मेरी 3 बिट है तो दैट मीन्स कि सारी मेरी 3 बिट वैल्यू है.
तो मैक्सिमम वैल्यू आई कैन गो अप टू 7 ओनली, ठीक है। तो मेरी वैल्यू 356 है, which I can represent as a 3 bit. So this 3 bit 3 down 0 to 2 is a my array type 3 bit array. This value is a name of this my array. This dollar suggests that it is a Q type, which is a homogeneous kind of array, and here the element is 356. Now this is all about I have declared this 2. Now I am defining a coverage. Okay, so I am defining a coverage cover group. Okay, whenever you want to write down a coverage, then you need to define a cover group keyword, and inside the cover group there has to be a cover point. So मैंने cover group define किया है, CG मैंने name लिखा है, ये cover point underscore y ये label है, ये label है. Okay, cover point is a keyword and what I have defined y. cover point क्या है y और y क्या है मेरा ट्री बिट एरे, ठीक है। मैंने कवर ग्रुप में क्या डिफाइन किया, आई वांट टू एक्चुअली ट्रैक, अभी कवर ग्रुप के अंदर जो भी है ना, दैट इज व्हाट इज आई वांट टू ट्रैक दिस. द मीनिंग ऑफ दिस इज आई वांट टू ट्रैक दिस. व्हाट आई वांट टू ट्रैक, आई वांट टू ट्रैक y, ठीक है। y क्या है, 3 बिट का है, ठीक है। y 3 बिट का है, so that means what are the total possible value of y? It is 8, 2 raised to 3. Since y is a 3 bit, so total possible value of y is 8 bit. ठीक है. Now I am using this as a, I think this is something which is CG is you can consider as a one handle of this, and this is basically constructor. Okay, probably means this is the concept of your C++, but this is just a constructor. This is just to consider like that I want to allocate some sort of memory for this. So that's why this is being written. Okay. Now important part is this initial, then for each values of I, what I am doing, for each values of y, the begin is there, then I am assigning y as a each values. What is values? Values are 3, 5, 6. Okay, so what is this? These values, whatever is being defined, that is nothing but this one. Okay, I hope you are following. तो इसमें क्या होगा कि ये values, that means 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वो मेरे y में जाएगा, ठीक है। So that means when I run this loop for each, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि y में क्या जाएगा, y में पहले 3 जाएगा, y में फिर 5 जाएगा, y में फिर 6 जाएगा, ठीक है। तो y में what could be the value of y? With this here through this y can carry 3, y can carry 5, y can carry 6, because this is being latch over here. I am considering this ये values मेरे y में latch हो रहे, ठीक है। पर जब मैंने यहाँ पे cover group लिखा, concentrate on this, what I have defined y as a cover point. मैंने क्या लिखा है, cover point y. Now what is y? Y is a 3 bit. When I define a 3 bit, then what is the total possibility? 2 raised to 3, 8. तो y की total possibility 8 है, ठीक है। What are those possibility? 3 bit है, तो y की possibility क्या हो सकती है? Y can be 0, y can be 1, y can be 2, y can be 3, y can be 4, y can be 5, y can be 6, y can be 7. So this is a total possibility of y when I define y like this. Okay. Now when I have a q and when I latch this, then what are the y value is being covered? 3, 5 and 6. But what are the total possible value of y? Is 0 to 7, 8. So that means the coverage of this particular code is 3 by 8. This 8 is total possibility.
and this is a covered value. Okay, here to just explain you, I have taken a one array. This could be your random value. ठीक है, जब आप कोई रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे हो तब कोई एक फिक्स सेट जनरेट होगा, तो वो फिक्स सेट आपकी जनरेटेड वैल्यू है, वो आप इसको एज अ कवर्ड वैल्यू मान सकती हो। पर जब y के लिए मैं बात करूं तो y की टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी थी? 8 थी। पर जब ये वैल्यू को मैंने लैच किया तब वैल्यू कितनी लैच हुई? 3, 5, 6, 3 हुई। सो कवर्ड वैल्यू 3 है, लेकिन टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी थी? 8 थी। सो दिस वे इफ यू लुक एट द कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड और कवरेज ऑफ दिस इज ultimately 3/8. What is this? This is 3/8. This is the expected because y was 3 bit, and this is covered for y only 3, 5 and 6. 3 values are covered. So 3 bit total 8 values are there, but out of this 3 values are covered. So 3/8. If you consider in the percentage, then it is 37.5. Probably this 3/8 comes out to be 0.3750. But when you convert into the percentage, that is multiply by 100, then it is 37.5%. Okay. I hope you are following me. Okay. Now let's try to understand with one more example. Okay. Gradually when we will discuss, then you will try to understand that what is the meaning of the coverage. Let's say the another scenario. Now coverage beans. Okay, abhi beans is also can be a part inside your cover point. अभी हमने coverage देखा, उसके अंदर coverage point देखा. Beans is something is I am specifying some value. So beans को आप you can consider as good as a one particular value. So cover point beans associate a name and count with a set of value or a sequence of value. So beans आपकी कोई एक value भी हो सकता है या आपकी sequence of value भी हो सकता है. You can consider it that is a one particular scenario that you would like to cover. So if bin designated a set of value, then count is incremented every time the cover point matches one of the value in the set. If the bin designates a sequence of transition, then count is incremented every time when entire sequence is being defined. Now bins can be created explicitly and implicitly. So this will be more clear when we will try to understand with the example. But bins is a one part that you can define inside your coverage group, cover group. Okay. Now try to understand this. Now, if you look at this. So this is one way to define an implicit bin. Bin, what is the bin? First try to understand it. आपका program same है. Okay. Just to make it clear, I have used the same program all the way. The only thing is according to the particular scenario, the cover group, ये portion आपका change होगा. इसके अलावा आपका जो कोड है आपके थ्रू आउट द स्लाइड सेम रहेगा. ये सिर्फ चेंज, ये जो मैं अभी आपको रेड कर रहा हूं वो चेंज हुआ है, बाकी का आपका कोड जो प्रीवियसली था वही है. ठीक है. सो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर मेरा y है, मेरा ये एक क्यू टाइप ऑफ एरे है जिसमें मैंने वैल्यू भी सेम रखी है 3, 5, 6. ये कवर ग्रुप के अंदर क्या है वो मैं देखता हूं. अभी ये आपका अगेन कंस्ट्रक्टर है, आपने यहाँ पे फॉर ईच वैल्यूज को मैंने y में लैच किया है और फिर उसको सैंपल किया है. ठीक है. इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस रेड वन. ठीक है. इसमें कवर पॉइंट है, कवर पॉइंट y है. ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो मैं अभी आपको हाईलाइट कर रहा हूं डार्क ग्रीन कलर से, ये अभी चेंज है. अभी मैंने क्या किया कि ऑटो बिन मैक्स, दिस इज अ इनबिल्ट कीवर्ड. ओके, दिस इज अ इनबिल्ट कीवर्ड टू स्प्लिट योर
टोटल सिनेरियो इनटू नंबर ऑफ टाइम्स। जहां पे मैंने ऑटो बीन मैक्स 4 किया है तो वो क्या करेगा, देखो यहां पे y क्या है, y मेरा एक 3 बिट एरे है, ठीक है। मेरा y क्या है, मेरा y 3 बिट वैल्यू है। अभी 3 बिट वैल्यू है तो 3 बिट की आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 दैट इज 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7। okay, that way all this 3 bit value is being generated. okay, now when I define this, okay, so again I am writing this 0 1 2 3 4 5 6 7. now when I define this auto bin next 4, then what it will try to do, it will try to generate the bins out of this, और वो नंबर ऑफ बीन्स क्या है, 4 है। अभी मेरे पास वैल्यूज कितनी है, 8 है, और मैं उसको उसमें से बीन्स कितने जनरेट करना चाहता हूं, 4। सो दैट मीन्स कि मेरे एक बीन में 2 वैल्यू आ सकती है। ओके, इट विल स्प्लिट लाइक दैट कि मुझे टोटल बीन्स कितने जनरेट करने हैं। ये कवर पॉइंट के लिए बीन्स क्या है, बीन्स मेरे यू कैन कंसीडर अ सेट ऑफ वैल्यू या फिर इट कैन बी अ वन वैल्यू आल्सो। तो मेरे पास y की टोटल 8 पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस 8 पॉसिबिलिटी को मुझे 4 बीन्स में डिफाइन करना है। तो क्या करूंगा कि मैं 0 1 को बीन एक ले लूंगा, इसको मैं अपना एक अलग बीन रखूंगा, ये मैं इसको अलग बीन रखूंगा, और 6 7 को मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 करने हैं, ठीक है, 4 करने इसलिए मैंने 8 को दो में डिवाइड किया, जिसकी वजह से मेरा ये फर्स्ट बीन हुआ, ये मेरा सेकंड बीन हुआ, ये मेरा थर्ड हुआ, ये मेरा फोर्थ हुआ। नाउ कंसीडर अ केस दैट कि मुझे यहां पे 4 नहीं, ओके, यहां पे 4 नहीं, लेट्स कंसीडर कि मेरे यहां पे नंबर 4 की जगह 3 है। तो 3 के केस में क्या होगा कि अगेन टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो मेरे इतने ही रहेंगे। तो इस केस में टूल ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि मैं इसको एक बिन लेता हूं, दिस आई विल डिफाइन एज अ बिन, 3 4 5 को मैं सेकंड बिन लूंगा, और 6 7 को मैं थर्ड बिन। टूल विल ऑटोमेटिकली डिसाइड, इट मे हैपन दैट टूल विल डिसाइड दैट 0 1 को एक लेंगे, ओके, हाँ, ओके, अगर इसमें टूल ऑटोमेटिकली ये भी डिसाइड कर सकता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये एक बिन है, फिर यूजुअली वो इक्वली ट्राई करता है, और इक्वली नहीं हुआ तो फिर उसको ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट करता है मोस्ट ऑप्टिमम वे, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 3, ठीक है। सो दिस वे इट कैन डू, बट फॉर्चुनेटली फॉर आवर केस ओरिजिनली क्या था कि ओरिजिनली ये वैल्यू में हमारा 4 है, तो 4 है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। now this is being defined equally. now this will be as 0 1 2 3 4 5 6 7. so this will be my first bin, this will be my second bin, this will be my third bin, and this will be my fourth bin. okay, now if I less this, तो मेरा क्या होगा कि y में रूट दिस लुक y could carry 3 5 6, so 3 मेरा यहां पे हिट होगा क्योंकि इस बिन में 2 और 3 है, 5 मेरा यहां पे हिट होगा, 6 मेरा यहां पे होगा, 2 में से कोई भी एक वैल्यू हिट होगी तो आई एम कंसीडरिंग दैट बिन इज कवर्ड। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बिन कितने थे, 4, इसमें से कवर कितने हुए, 3। सो दिस वे
if you look at this, the coverage of this particular is 75%. क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड 4 थे और कवर्ड कितने हुए 3. अभी ये देखो एक्सप्लेनेशन कि ऑटोबिन मैक्स इज डिक्लेयर्ड एज अ 4, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना कि ऑटोबिन मैक्स ऑप्शन 4 डिफाइन किया है, उसकी बात कर रहा है. सो ऑटोबिन मैक्स इज डिक्लेयर्ड एज अ 4. सो टोटल पॉसिबल वैल्यू डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी थी? 8 थी और हमने नंबर कितना डिफाइन किया? 4. सो ऑटोमेटिकली द पॉसिबल वैल्यू विल बी डिवाइडेड इन अ ग्रुप where bean 0 that means my first bean, where it can have a 0 1 value. Bean 1 it can have a 2 3. Bean 2 it can have a 4 5. Bean 3 it can have a 6 7. ठीक है, ये सीक्वेंशियली किया 0 1 2 3 4 5 6 7. यूजुअली टूल ऐसा करता है, ठीक है, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 उसको अलग अलग बीन बना दिया. फिर y when it is being assigned, तो y की जो वैल्यू 3 5 6 ये जो एरे की है वो मेरे y में असाइन होगी. तो एक्चुअली कवर क्या होगा? एक्चुअली कवर 3 5 6 होगा. 3 5 6 होगा दैट मीन्स कि मेरा 3 इस बिन में आता है तो ये मेरा एक कवर हुआ. फिर मेरा 5 यहाँ पे आता है तो ये बिन कवर हुआ. फिर मेरा ये बिन कवर हुआ. सो आउट ऑफ दिस द बीन 1 बीन 2 बीन 3 दिस 3 बीन्स आर बीइंग कवर्ड. कौन सा एक बीन रहेगा? बीन 0, क्योंकि 0 और 1 दोनों में से कोई भी वैल्यू कवर नहीं हुई. सो दैट्स व्हाई 3 आउट ऑफ 4. सो ये 4 में से ये बीन 1 बीन 2 बीन 3 कवर हुआ लेकिन बीन 0 कवर नहीं हुआ. सो दैट मीन्स 3 इज कवर्ड आउट ऑफ 4 एंड दैट्स व्हाई द कवरेज इज 75. व्हाट आर द कवर्ड बीन? ये आप जब कवरेज देखोगे तो कवरेज में दिखाई देगा कि आपका ये अनकवर्ड बीन है और ये कवर्ड बीन है. सो टूल विल नोटिफाई यू कि आपका कौन सा कवर हुआ है और कौन सा कवर नहीं हुआ, सिंस यू हैव डिफाइंड लाइक दिस. ठीक है, सो आई होप यू आर फॉलोइंग मी. सो दिस कवरेज इज 75%. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. नाउ इम्प्लिसिट वे ऑफ डिफाइनिंग बीन इज नॉट पॉपुलर एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो, क्योंकि आप टूल के ऊपर छोड़ रहे हो कि वो कैसे इसको स्प्लिट करता है. द गुड थिंग इज यू नीड टू एक्चुअली स्प्लिट इट इन अ मोर प्रैक्टिकल वे एंड यू नीड टू डिफाइन इट एक्सप्लिसिटली. ओके, सो एक्सप्लिसिट वे में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपने यू हैव डिफाइन इट मोर क्लियरली दैट हाउ इट शुड बी डिफाइंड. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पोर्शन. अगेन आपका कोड सेम है, सिर्फ ये पोर्शन जो है वो डिफरेंट है. इसमें मैंने y के बीन्स को अपने आप ही डिफाइन कर दिया कि आई वांट अ 4 बीन. 4 बीन में एक बीन 0 1 चाहिए, दूसरा 2 3 चाहिए, तीसरा 4 5 चाहिए और चौथा 6 7 चाहिए. पहले केस में आपने ऑटो बीन मैक्स वैल्यू करके टूल के ऊपर छोड़ दिया था कि मुझे 4 बीन चाहिए, 8 में से आप 4 कैसे डिवाइड करते हो आपके ऊपर. यहां पे मैंने आई हैव डिफाइन इट माई सेल्फ कि मुझे क्या कवर करना है. ठीक है, वो मैंने अपने आप डिफाइन किया, मैंने टूल पे डिफाइन नहीं किया. तो यूजुअली कवरेज में आई शुड आइडेंटिफाई दैट व्हाट आई वांट टू बी कवर्ड. ठीक है, सो दैट इज अ मोर प्रैक्टिकल वे. So as a verification engineer, the good thing is you should use the explicitly been definition rather than implicit. तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 अगेन ये जो डिफाइन किया है वो सेम था जो जैसे टूल ने किया था. तो अगर मैं इसका कवरेज देखूंगा तो कवरेज विल बी सेम 75%. तो मेरा A अनकवर्ड रहेगा. A कौन सा था? 0 1. ये जो है वो मेरा अनकवर्ड बीन है. ठीक है, और मेरे कवर्ड बीन क्या है? ये तीनों है. ठीक है, सो स्टिल द कवरेज इज सेम. ठीक है, नाउ इन अ कवरेज यू कैन डिफाइन अ एरे ऑफ बीन्स. ठीक है, आप बीन्स को एरे के टर्म्स में भी डिफाइन कर रहे हो. ठीक है, तो मैंने अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आपका जो पोर्शन है रेड पॉइंट जो कवर ग्रुप में है, बाकी के अलावा तो सेम ही है. तो ये कवर ग्रुप में मैंने y लिखा,
और बीन्स ए 7 to 0. नाउ मैंने एरे डिफाइन किया, तब मैंने इसको 0 to 7 डिफाइन किया. अभी इस राइटिंग का मीनिंग क्या है कि मैं इसको एरे बनाना चाहता हूं और एरे कुड बी 7 to 0. ठीक है. सो दिस सजेस्ट दैट आई वांट टू डिफाइन ईच एंड इंडिविजुअल. ये क्या डिफाइन करेगा कि आई वांट दिस ए. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? So this suggests that I want A0, I want A1, I want A2, I want A3, I want A4, I want A5, I want A6, I want A7. This way I want to define it. So that means total 8 beans would be generated. By writing this, total 8 bean will be generated. In a previous case, the total number of beans is lesser than the possible value. So that's why in a one particular bean, 2 values are considered. But here, by writing this, the meaning is that I want to generate each and individual as a bean. तो ये A0 होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा. हर एक के लिए एक वैल्यू डिफाइन होगी. A0 के लिए 0, A0, A1 के लिए 1. सो मेरे अल्टीमेटली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर एक के लिए अलग बीन होगा. ये मेरा अलग बीन होगा. लाइकवाइज टोटल 8 बीन विल बी देयर. जब मैं एक्चुअली में यहां से वैल्यू लेच करूंगा तो क्या होगा? y की वैल्यू 3, 5 और 6 आएगी. लेकिन यहां पे मैंने डिफाइन क्या किया है? टोटल 8 बीन्स. तो व्हाट वुड बी द कवरेज ऑफ दिस? यस, कैन एनीवन थिंक अबाउट? इसका कवरेज क्या आएगा? व्हाट वुड बी कवरेज ऑफ दिस? So here I have put a question mark. So just to impose that, what would be the coverage of this? I think people are writing 3 by 8. Very good. So I think that you are following it. So what is the meaning of this? The expected coverage will be 3 by 8. So A0, A1, A2, A3, A4, A7. So this is not being covered. That means what is the meaning of this? What is the meaning of this? This is for my 0, this is for my 1, this is for 2, this is for 4, this is for 7. तो जब मैंने y की वैल्यू लैच की थी तो वो तो 3, 5, 6 थी. तो दैट मीन्स ये मेरा 3, 5 और 6 कवर हो रहा है, लेकिन 0, 1, 2, 4, 7 कवर नहीं हो रहा है. तो पॉसिबल वैल्यू जो 8 थी उसमें से 5 अनकवर्ड है और मेरी 3 ही कवर है. ठीक है. सो कवरेज विल बी 3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल. सो 3 by 8, 37.5. So this is the coverage. Very good. Now move ahead with the next example. Now I expect you to just think about that. What is the coverage? I will explain that what is being written inside the cover group. ठीक है. Now what is the meaning of this? Now it is being written over here. Okay, कि I have a program. Again, the important part is this one. Cover point, उसमें बीन A4 लिखा है 0 to 7. Now this is the number. पहले ये ब्लैंक था. जब ब्लैंक था तब वो each and every वैल्यूज को इंडिविजुअली बीन्स बना रहा था. लेकिन यहां पे मैंने बीन की वैल्यू डिफाइन की है 4. So that means the bean will be 4. Total number of bean will be 4 by this. But total possible value is 8. तो वो bean को कैसे स्प्लिट करेगा? दो में करेगा. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. अभी इसका कवरेज क्या होगा? Yes, can anybody think about it? इसका कवरेज क्या होगा? Yes, very good, very good.
75%, वेरी गुड। सो ये मैंने 4 में डिवाइड किया है, तो जस्ट टू एक्सप्लेन इट, 4 में डिवाइड किया है तो टोटल ये 4 में डिवाइड किया है तो कैसे डिवाइड होगा, यहां पे ये डिवाइड होगा ऐसे, 8 0 0 1 8 2 3 8 4 5 8 6 7। ठीक है, जब मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहां पे लैच करूंगा तो मेरी 3 5 6 आएगी, तो दैट मीन्स कि ये कवर हो जाएगा, ये कवर होगा, ये कवर होगा, लेकिन 0 1 दोनों में से कोई कवर नहीं हुआ, so that means this will be uncovered while these 3 are covered. So the coverage would be for this particular case is 75%. So many of you have predicted correctly. So this is the explanation. Since you have defined 4, so 0 to 7 will be split into the 4 part, where it will be 0 1 2 3 4 5 6 7. Just observe that ये मेरे covered beans हैं, ये मेरा अनकवर्ड बीन्स है। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 4 थे, कवर्ड प्लस अनकवर्ड 4 थे, उसमें से कवर्ड कितने हुए, यही 3 हुए, सो दैट्स व्हाई द कवरेज इज 75%। ठीक है, नाउ फॉर अ कवर पॉइंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन एक्चुअली डिफाइन अ पार्ट ऑफ द कवर पॉइंट। ठीक है, आपके एरे के कुछ पार्ट को भी आप डिफाइन कर सकते हो, इवन आप कवर पॉइंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि टॉप, ये बेसिकली आपके हायरार्की की डिफाइन करता है। एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल है, दैट मीन्स कि आपका टॉप मॉड्यूल है, टॉप मॉड्यूल के अंदर एक डीयूटी है, डीयूटी के अंदर सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल के अंदर बस एड्रेस है, तो एक्चुअली सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल के अंदर एक बस एड्रेस करके डेटा टाइप है। तो आपकी हायरार्की इसमें ऐसा डिफाइन हो रही है कि आपका एक टॉप मॉड्यूल है, टॉप मॉड्यूल के अंदर आपका डीयूटी है, एक डीयूटी के अंदर सब मॉड्यूल है, और उस सब मॉड्यूल के अंदर आपने डिफाइन किया है बस अंडरस्कोर एड्रेस। तो उसको मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा, टॉप मॉड्यूल के अंदर से मैं डीयूटी में जाऊंगा, डीयूटी से मैं सब मॉड्यूल में जाऊंगा और उसके वहां से बस एड्रेस में जाऊंगा। दिस इज जस्ट नथिंग बट अ हैंडल ऑफ ईच एंड एवरी दिस क्लास, दिस इज नथिंग बट माय क्लास। टॉप एक क्लास है, डीयूटी अंडर है, सब मॉड्यूल है, तो इसके थ्रू मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे अंदर जाऊंगा और उसके लिए बस एड्रेस में जाऊंगा। आप कवर पॉइंट को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई वांट टू कवर द बस एड्रेस दिस, क्योंकि आपका सब मॉड्यूल के अंदर अगर आप लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन आप टॉप मॉड्यूल से के बाहर से लिख रहे हो, ठीक है, और टॉप मॉड्यूल के बाहर से आपको ये बस एड्रेस को एक्सेस करना है, देन दिस इज द वे यू कैन डू इट। कवर पॉइंट में आप ऐसे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, a into b I want to consider। आप कोई फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो एज अ कवर पॉइंट, आप किसी को एज अ रेफरेंस वैल्यू भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, यूजुअली ये दोनों का यूज नहीं होता, पर ये हम यूज करते हैं। ठीक है, वी विल सी दिस वन बाय वन। ओके, नाउ फिल्टर, नाउ यहां पे भी आप कवर पॉइंट को फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, कि इफ reset, your cover point will be considered if reset is this case, the expression within if construct specify the optional condition that is disable the coverage for a cover point. If the guard expression evaluates to fall at a sampling point, the coverage point is ignored. तो यहाँ पे अगर reset ये हुआ तब का कवरेज कैलकुलेट ही नहीं होगा, जैसे assertion में था, आपको कवरेज को डिसेबल करना है तो आप किसी कंडीशन से उसको डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, then cover, now it is a coverage bin default value। okay, so coverage bin default value, now again मैं आपको concentrate इसी पे करने को बोल रहा हूं कि हमारे लिए important ये है जो हमने डिफाइन किया है, cover point A2 and then 0 to 4।
तो 0 to 4 है, उसमें मैंने A2 डिफाइन किया है। दैट मीन्स कि 0 1 2 3 4 है, उसका 2 में डिवाइड करना, ठीक है। और वैल्यू, और उसके अलावा डी की जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट है। दिस अनदर बीन्स आर डिफॉल्ट, ठीक है। So the default specification defines a bean that is associated with none of the defined value beans. The default bean catches the value of the coverage that do not lie within any of the defined bean. However, the coverage calculate for a cover point shall not take into account. तो ये क्या करता है कि आपकी y की पॉसिबल वैल्यू तो 0 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन यहाँ पे आपने 0 to 4 लिया है, 0 to 4 लिया है। दैट मीन्स कि आप इसी वैल्यू के लिए इंटरेस्टेड हो, बाकी के हमने डिफॉल्ट कंसीडर किया। दैट मीन 5 6 7 है, लेकिन मैं एज अ बीन्स उसको कंसीडर करना नहीं चाहता। दैट आई एम कंसीडरिंग एज अ डिफॉल्ट, ठीक है। तो मेरे लिए 0 1 2 3 4 दोज आर इंपॉर्टेंट, उसमें से मुझे उसको दो में स्प्लिट करना है। ओके, वॉट एवर द डिफॉल्ट आर देयर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कवरेज कैलकुलेशन। प्लीज टेक केयर ओवर हियर कि डिफॉल्ट जो केस है उसका 5 6 7 का आपका कवरेज के लिए देखना ही नहीं है, आपको 0 1 2 3 4 में से देखना है। अभी 0 1 2 3 4 है, उसमें से आपको दो में डिवाइड करना है। तो या तो 0 1 होगा, 3 4 5 होगा, या फिर 0 1 2 होगा, या 4 5 होगा। आप कोई भी केस लोगे, ठीक है, तो उसमें कवर तो कोई भी एक ही बीन होगा, ठीक है। So what will be your coverage in this case? Okay, if you are following me, तो क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं यहां पे कि आपका डिफॉल्ट 5 6 7 में जाएगा। तो ये तो आपके कवरेज में आपको कंसीडर करना ही नहीं है। आपके लिए चिंता है 0 1 2 3 4। अभी इसको 8 2 है, दो में स्प्लिट करना है, तो या तो मैं इसको एक बीन ये ले लूं और दूसरा बीन ये होगा, या फिर अनदर वे अराउंड ये होगा कि ये मेरा एक बीन होगा और ये मेरा दूसरा बीन होगा। अभी मैं लैच 3 5 6 कर रहा हूं, तो ये मेरा कवरेज कितना देगा? यस, कोई बता पाएगा कि मेरा कवरेज कितना होगा? वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड नंदिनी, ज्योत्सना, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, हिरानी, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। सो योर कवरेज विल बी 50%। नाउ आई थिंक यू आर फॉलोइंग मी, क्योंकि मेरा अनकवर्ड बीन 0 बन रहा, क्योंकि मेरे लिए तो 0 to 4 ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो मैंने A2 लिखा था, तो ये वैल्यू जो 0 to 4 थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। जब मैं 3 5 6 करूंगा तो ये कवर्ड होगा, क्योंकि इसके बिटवीन में 3 कवर्ड हो जाएगा। 5 6 तो मेरे लिए डिफॉल्ट में गया, उसका तो मुझे कंसीडर ही नहीं करना, लेकिन 0 और 1 में से कोई कवर नहीं हुआ। दैट्स व्हाई दिस इज अनकवर्ड बीन, ठीक है। तो कवरेज विल बी 50%। Now I can expect that in the next few slide you will give me the answer, ठीक है। नाउ बीन्स में आप ट्रांजिशन भी डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स की वैल्यू एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कैसे जंप हो रही, दैट इज अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट वी विल सी। नाउ सिंगल वैल्यू ट्रांजिशन दैट मीन्स जब वैल्यू 1 से वैल्यू 2 पर जा रही है तब मुझे उसको चेक करना है कि वो जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो अगेन ये सारा कोड सेम है, सिर्फ कवर ग्रुप में ये पार्ट इज इंपॉर्टेंट। 3 5 6 तो हो ही रहा है। अभी मैं क्या डिफाइन किया, मुझे ये देखना है कि ट्रांजिशन 3 to 4 हो रहा है या 5 to 6 हो रहा है। आपका ओरिजिनल क्यू में ये है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है इससे कि आपका वैल्यू 3 है, 5 है, 6 है, तो यहां पे जब जाएगा तब 3 5 6 होगा। आपने क्या डिफाइन किया है,
I am interested in when value goes from 3 to 4 and 5 to 6. These two are your beans. ठीक है, आपने अपना एक्सपेक्टेशन डिफाइन कर दिया. व्हाट इज बीन? बीन माय एक्सपेक्टेड वैल्यू. मुझे ये जब भी कवर होता है तब मुझे देखना है कि कवर हुआ है. तो ये आपका एक बीन होगा, ये आपका दूसरा बीन होगा, और आपकी वैल्यू लैश ये हो रही है 3, 5, 6. सो व्हाट विल बी योर कवरेज? What will be your coverage for this case? Okay, I think some of you have given me the answer. Ilexi 0406. He is saying 2 by 8. Why 2 by 8? Shruti and Saurabh both are correct. But I would like to know that why you have considered 2 by 8. See, my expectation, that is whatever you define over here, that is the part of the point you would like to put in a coverage. ठीक है, तो यहां पे मैंने डिफाइन किया है कि मुझे 3 to 4 और 5 to 6 ये दो सिनेरियो में इंटरेस्ट है, बाकी कोई सिनेरियो में इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, तो जब आप यहां से 3 to 5, 5 to 6 जाओगे तो 5 to 6 कवर हुआ, 3 to 5 भी हो रहा है, लेकिन वो आपका इंटरेस्ट नहीं है. आपका इंटरेस्ट क्या है? 3 to 4 और 5 to 6. तो 5 to 6 कवर होगा, 3 to 4 कवर नहीं होगा. So that means it is 1 by 2. It is 1 by 2. So that means your coverage is 50%. So it is 1 by 2. क्यों 2 beans are created? क्योंकि आपने beans में 2 ही लिखा है. आप देखो यहाँ पे जो कवर पॉइंट में जो लिखा है वो अपने कवरेज में जाएगा. आपने अपना एक्सपेक्टेशन क्या बताया कि मुझे 3 to 4 और 5 to 6 जब कवर हो रहा है तब मुझे देखना है कि वो कवर हो रहा है कि नहीं. तो उस टाइम पे वो चेक करेगा. सो दैट मीन्स 3 to 4 and 5 to 6 are important. But since when values goes from 3 to 5 to 6, the only 5 to 6 is being covered. So transit 3 to 4 is uncovered, 5 to 6. So this defines that. What is the meaning of this? ये डिफाइन करता है कि 3 to 4 का ट्रांजिशन, this 5 to 6. पर when originally 3 to 5 to 6 it will goes, it will cover only this. ठीक है, ये मेरा कवर नहीं होता, that's why it is uncovered being. This is covered being. So that's why it is 1 by 2, 50%. I hope you are following me. Okay, I can see some. Okay, thank you. Now next one, sequence of transition, not only a single transition. I can go for a sequence of transition. Now same example, what it says that value 1 will go from 1 to 3, 4, 5. So again, pay attention over here. I am interested in transition from 3 to 4, 4 to 5. That is my one expectation. What is my second expectation? 3 to 5, 5 to 6. Okay, so what will be the coverage? Yes, Nandini, all, Tanmay, Aniruddha, very good. So now I am getting that you are, all of you are getting what is there. So all of you are right. So 3, 4, 5, that means this is not being covered. What is being covered? 3, 5, 6 only. So that's why the coverage is 50%. Very good. Set of transition. Again pay attention over here. Okay. Again pay attention over here. Now what is the meaning of this? Now whenever you write down like this, okay, just to understand the syntax, what is the meaning of this? This suggests that when I write down 3 to 4, or sorry, when I write down like this, 3 to 4 and 5, 6, you need to understand that it is 3 to 5, 3 to 6, 4 to 5, 4 to 6. So this is my expectation. I would like to cover when 3 goes to
5, 3 goes to 6, 4 goes to 5, 4 goes to 6. But when I latch it, it will go like this: 3 to 5, 3 to 6. Now what will be my coverage? Yes. What will be my coverage? Many of you are writing 1 by 4. Very good. The correct answer is 1 by 4. Sorry. It is in the next slide. 1 by 4. 3 to 6, 4 to 5, 4 to 6 is covered. Only 3 to 5 is covered. I believe all of you are getting now. Let's see next example. So repetition is also applicable in coverage. Okay. So we have seen today that with a square bracket we can write down repeatage range. So 3 star dot 5. What the meaning is that 3 is going to be transit from 5 number of times. That means 3 to 3, 3 to 3, 3 to 3, 3 to 3, 3 to 3. 5 number of times. That I would like to check. So again, same thing, but just pay attention. Here the Q is changed. Because whatever the previous Q, over there was no repetition. So that's why the Q is changed. Still this part is important. So what is the meaning of this? I am interested in 3 transition 5 number of times, and I am interested 4 transition 2 number of times. What could be the answer? So here this is important. ठीक है? क्या है यहाँ पे? I am interested in 3 2 3 2 3 2 3. Sorry. 3 2 3 2 3 2 3. This is my first. What is my second? 4 2 4. So this is my expectation 1. This is my expectation 2. This 2 expectation I am defining. Now actually when it goes, it will go to like this: 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4. So what will be the coverage now? What will be the coverage? Very good. Many of you are writing 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. 1 minute. हाँ सर. सर नहीं अभी चला. हाँ हाँ ठीक है. Okay. So means again let's move to the next slide. So as I said that probably means we would like to complete it today. So maybe means I hope you are enjoying, and I am also enjoying. So for me there is nothing means good that if you are still following me. So I can speak as good as for 5-6 hours as a teacher. No issue. Okay. Now just concentrate over here. Repeated range. So here it will show that 3 to 5. Probably we discussed this. So what is the meaning of this? It can be of 3. This is 3. This is, it can be of 4 or it can be of 5. Okay. Now let's go to the example. Now here in every example probably you will find out the Q is different. That you need to pay attention just to according to the example that I have taken. Okay. Now again the question which is being imposed, what will be the coverage? Yes. What will be the coverage? Okay, now I am talking about splitting answer. . Okay.
Okay. So somebody is suggesting Nandini 2/3, Aniruddha says 1/3, Saurabh say 1/3, Vaishnavi say 1/3, Ilaxi say 1/2. 100% तो नहीं आएगा, ठीक है. So actually the answer is 1/3. Okay. Now try to understand this. Now this when I define, then what is the meaning of this? कि 3 मैं ऐसे चाहता हूं. This is my first. What is second? Second is like this, कि जहां पे 4 आ रहा है. So this is for 3, this is for 4, and last one is for 5. ठीक है. तो मेरा टोटल एक्सपेक्टेशन 3 है. बाय मीनिंग ऑफ दिस कि वो ये आएगा या ये आएगा. पर एक्चुअली जब मैं यहाँ पे सैंपल करूंगा तो ये ऐसे जाएगा, 4 to 5 जाएगा, 4 से सॉरी ओके, वो क्या जाएगा, 4 से 5 जाएगा, 5 से 3 जाएगा, फिर 3 से फिर से 3 जाएगा, फिर उसके बाद 3 जाएगा, फिर उसके बाद 3 जाएगा, फिर उसके बाद 6 जाएगा, वो इसके बाद 7 जाएगा. तो इसमें 4 to 5 मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट है. तो मेरे लिए ये है जो कवर होगा, जो डेट मीन्स कि ये मेरा कवर होगा. ये दोनों कवर नहीं हो रहे, ठीक है. तो टोटल पॉसिबल केस 3 थे जिसमें से कवर सिर्फ ये हुआ. So that's why it is 1/3. I hope you are getting. ठीक है. So it is 1/3. I hope you are getting. ठीक है. I hope those who are having the other answer than 1/3, they are getting that why it is the correct answer. Okay, go to repetition. Go to repetition is also possible. ठीक है, like this 3 to 3. तो go to repetition में ऐसा आएगा कि 3 in between कभी भी आएगा, ठीक है. So in go to repetition what it says that transition repeated range, the required number of occurrence of a particular value is specified by a repeated range. Any number of sample point can occur before the first occurrence of the specified value, and any number of sample point can occur in between occurrence of the specified point. The transition following to go to repetition must be immediately followed by a last occurrence. Okay, तो ये बेसिकली आपका दो अलग अलग टाइप का रिपीटेशन हुआ. ये गो टू है, ये प्रोबेबली नॉन कंसेक्यूटिव रिपीटेशन है कि जिसमें 5 से पहले 3 आना चाहिए. इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल. ओके, नाउ द एग्जांपल इज आई हैव दिस पर्टिकुलर एरे. ओके, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन आई एम डिफाइनिंग लाइक दिस. सो 1 to 5 के बीच में 3 बार आना चाहिए, and it should be before 5 when I use this kind of operator. ठीक है. तो ये क्या हुआ कि 1 से लेके 5 के बीच में अगर आप देखोगे 1 2 3, तो 1 से लेके 5 पे ये 3 मेरा 3 बार आ रहा है, ठीक है. That's why it is a coverage 100%. Non-consecutive repetition. Non-consecutive repetition could be defined like this, followed by additional value. So 1 और 3 के बाद में 3 मेरा 2 बार आना चाहिए, वो कभी भी हो सकता है. So similarly pay attention over here कि 1 और 5 के बीच में 3 आ रहा है, ठीक है. 3 2 बार आ रहा है. So that's why it is a 100% coverage. I think now you are following me. Okay. Now that is interesting. Okay, wild card. You can define your being as a wild card. Now what is the meaning of wild card being? So whenever it is a wild card being, then in a wild card being you are defining something like a question mark.
So wild card entry can be X, Z and question mark. So these are being treated whenever the bit is not 0, 1, and if your bit is X, Z or question mark, then it can be treated as a wild card. ओके, तो यहां पे मैंने जब क्वेश्चन मार्क लिखा तो क्वेश्चन मार्क के मीनिंग में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है. आई एम नॉट डिफाइनिंग इट. ठीक है, तो बेसिकली दिस सजेस्ट दैट व्हेन आई एम राइटिंग 1 1 वाइल्ड कार्ड, तो दिस टू बिट कैन बी एनीथिंग 0 और 1. तो अगर आप देखोगे तो ये चारों पॉसिबिलिटी कवर की है, 0 0 0 1 1 0 1 1, बिकॉज हियर इट इज डिफाइंड एज अ क्वेश्चन मार्क. जहां पे क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क वाला बिट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो सिंस देयर आर 2 क्वेश्चन मार्क, तो उसके लिए 4 पॉसिबिलिटी ये कवर होगी. ठीक है, सो दिस वे यू कैन डिफाइन अ बिट एज अ वाइल्ड कार्ड. ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड भी इनके लिए अगेन सिंपल एग्जांपल इज दैट प्रोबेबली यू कैन गो थ्रू इट कि मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, वाइल्ड कार्ड बिन डिफाइन किया है. वाइल्ड कार्ड बिन में क्वेश्चन मार्क है और मेरा जो क्यू है उसमें यही सारी चारों वैल्यू है. आप जरा ऑब्जर्व करना, ये चारों वैल्यू है, तो ये चारों वैल्यू ये वाइल्ड कार्ड में आ जाती है. अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं आती तो दैट मीन्स माई कवरेज इज 0%. ये चारों वैल्यू है जो मेरा ये क्वेश्चन मार्क कवर करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज 100%. नाउ वाइल्ड कार्ड मीन्स आई कैन राइट डाउन इन अ रेंज इटसेल्फ. ओके, अगेन एक्स डिफाइन किया है, एक्स को आपको वाइल्ड कार्ड करना है. एक्स हो, जेड हो या क्वेश्चन मार्क हो, मीनिंग वही है कि वो बिट को मुझे दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करना है. ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में इस वाइल्ड कार्ड को फॉलो करता हूं तो ये क्या हुआ, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है. दैट मींस हियर इट कुड बी 0 0 0 1 which can go to a set 1 0 1 1, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये मेरा 0, ये मेरा 1 हो गया. So this suggests that this is 0 1 which can go to 2 3. ठीक है, तो this suggests that 0 to 2 0 to 3 1 to 2 1 to 3. I hope you are getting this. This x, that means this can be 0, this can be 1. So which suggests that this 0 0 is 0, this 0 1 is 1, this 1 0 is 2, this 1 1 is 3. So 0 1 2 3. So this suggests that this range is 0 to 2 0 to 3 this way, 1 to 2 1 to 3 this way. Okay, so this is a suggestion. With that you can move ahead. Now example is I am covering 0 0 0 1 1 0 1 1. So probably you can find out the coverage. What would be the coverage? Yes, what will be the coverage for this? Probably when you put x as 0 1 and this as a 0 1, then all the possibility will be covered which is there. So coverage would be 100%. Okay, ignore means, now that is very important. Okay, so sometimes you would like to specify that few beans are ignored. I would like to ignore it. Okay, so that will be excluded from your coverage. It is something like a default. जो हमने डिफॉल्ट किया था कि बाकी की वैल्यू डिफॉल्ट की, पर उसमें डिफॉल्ट कब था कि जब मैंने कुछ वैल्यू डिफाइन की थी. अगर आपको याद हो कि मैंने 0 1 2 3 4 5 डिफाइन की थी, उसके बाकी की वैल्यू जो थी वो मैंने डिफॉल्ट में रख दी 5 6 7, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गई कवरेज में से. अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इग्नोर कर रहा हूं ये वैल्यू. दैट मीन्स कि ये वैल्यू
मेरे कवरेज का पार्ट ही नहीं है, ये मेरे कवरेज का पार्ट ही नहीं है। और कंसीडरिंग कि मैंने ये एरे की वैल्यू को y में लैच किया, ठीक है, सो ये वैल्यू मेरी इग्नोर करनी है, ये वैल्यू इग्नोर करनी है, और y मेरा ये है। व्हाट कुड बी द कवरेज? यस, कैन एनीवन थिंक अबाउट इट? y की टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। 0 1 2 3 5 6 7, उसमें से ये मुझे इग्नोर करनी है। यस, क्या होगा? So I am getting some answer. Actually, I am getting some answer, but none of them is correct till now. See, one thing that you are all are considering. When I put this, all of you are making one common mistake. Okay, that is y is total 8 value. That I agree. 0 1 2 3 4 5 6 7. But when I put this as an ignore bin, then this has to be excluded. So that means 1 2 3 4 5. This is nowhere are part of my coverage, because this is now is being ignored. ये अभी आपकी रहेगी ही नहीं, ये आपका इग्नोर करना है, ये अभी आपकी पार्ट रहेगी नहीं, बिकॉज दैट इज द मीनिंग ऑफ द इग्नोर बिन। तो आपके पॉइंट कौन से रहे? 0 6 7, क्योंकि 1 2 3 4 जो यहाँ पे मेंशन थे वो तो इग्नोर कर दिए। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कवरेज एनीमोर। अभी आपका कवरेज का पार्ट क्या रहा? 0 6 7। अभी 0 6 7 में से कौन सी कवर हो रही है वो आपको देखना है। नाउ व्हाट वुड बी योर आंसर? वेरी गुड। नाउ इट इज 2 by 3. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ओके, क्योंकि 6 7 ही कवर होगा, आपकी 0 कभी भी कवर नहीं होगी। सो दैट प्रोबेबली यू विल फाइंड आउट कि आपका ऑटो 0 कभी कवर ही नहीं हुआ। अभी आपने इग्नोर बिन डिफाइन किया है, तो डिफॉल्ट और इग्नोर बिन्स में डिफरेंस ये है कि आपने एक्सप्लिसिटली उसको इग्नोर बिन डिफाइन किया है, तो आपके कवरेज रिपोर्ट में वो दिखाई देगा। ये आपका इग्नोर बिन डिफाइन किया है, वो कवरेज रिपोर्ट में आपको रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने डिफॉल्ट डिफाइन किया है तो वो कवरेज रिपोर्ट में भी वो डिफॉल्ट मीन्स कि वो गया, वो आपका कहीं पे भी अभी दिखाई नहीं देगा। पर सिंस यू हैव डिफाइंड एज ए इग्नोर बिन, आई थिंक इग्नोर बिन, यहाँ पे इलीगल नहीं, इग्नोर बिन आना चाहिए। तो इग्नोर बिन में ये 5 आए, ऑटो 0 आपका अनकवर्ड रहा, 6 7 कवर्ड रहा, ठीक है। नाउ समथिंग एज अ इलीगल बिन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इग्नोर बिन एंड इलीगल बिन। इलीगल बिन्स क्या है कि वो तो आना ही नहीं चाहिए। अभी इग्नोर का मतलब ये है कि आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन इलीगल में मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। वो इलीगल दैट मीन्स कि दैट शुड नॉट बी हैपन। अगर वो इलीगल है तो मुझे एरर जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पे जब भी मैं इलीगल बिन डिफाइन करूंगा तो ये 7 है, तो जब भी मैं ये वैल्यू को लैच करूंगा, अगर ये वैल्यू इसमें आ रही है जैसे कि यहाँ पे आ रही है, तो ये डेट मीन्स कि इलीगल बिन मेरा हिट हो रहा है। इलीगल बिन हिट हो रहा है तो मुझे एरर जनरेट होनी चाहिए। सो इलीगल बिन इज बीइंग हिट। सो इलीगल बिन का मीनिंग क्या है कि इलीगल बिन में वो बिन आएगा जो वैल्यू जब भी जनरेट हो रही है तो मुझे एरर मिलनी चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट ऑलवेज एनीवे आई कैन इग्नोर इट ऑल्सो। वो जब भी आ रही है वो मेरा इलीगल बिन है। दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ माई कवरेज। पार्ट ऑफ द कवरेज छोड़ो, वो पार्ट ऑफ द कवरेज तो मुझे कंसीडर ही नहीं करना है। वो कवरेज में जब भी हिट हो रहा है तब मुझे कवरेज की चिंता नहीं है, वो आने ही नहीं चाहिए। उस टाइम पे आई नीड टू इन्फॉर्म एज अ एरर, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, आई थिंक cross coverage. Okay, now that is something important, interesting. Now what is meaning by a cross coverage?
where I would like to find out the cross of a 2. Now here if you observed it, here I have taken a 2q. One is this and another is this. और मैंने वेरिएबल भी डोली है क्योंकि क्रॉस के लिए हर बार मुझे 2 चाहिए वैल्यू, क्योंकि क्रॉस कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ 2 ओनली. जैसे कि आपका डीएसपी में था ना ऑटो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन, तो क्रॉस कोरिलेशन में 2 के बीच में बात करते हैं, तो कवरेज में भी वही एप्लीकेबल है. तो मेरा कवर ग्रुप है, मैंने कवर पॉइंट y लिया, कवर पॉइंट z लिया और मैंने यहाँ पे क्रॉस दोनों कवर पॉइंट का लिया. ठीक है. और फिर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली लैचिंग ईच एंड इंडिविजुअल ऑफ वैल्यू जो यहाँ पे है 1 3 और 1 4. सो 1 3 है और 1 2 है, मैं लैच यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 3 और 1 4 कर रहा हूँ. तो फिर मेरा क्रॉस कवरेज क्या होगा. ठीक है. सो अल्टीमेटली व्हेन आई टेक अ क्रॉस कवरेज लाइक दिस, ठीक है, तो y मेरा 3 बिट है, z मेरा 3 बिट है, तो दैट मीन्स कि टोटल पॉसिबल वैल्यू 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 3 3. एक्चुअली में यहाँ पे ये 2 बिट है, सॉरी 3 बिट नहीं, ये 2 बिट है, तो ये y की 2 बिट है, दैट मीन्स y कैन बी 0 1 2 3, z कैन बी 0 1 2 3. तो उसके में क्रॉस कवरेज क्या आएगा 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, 0 2 आएगा, 0 3 आएगा, 1 0 आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 0 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 0 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा. तो ये मेरे टोटल अगर मैं कंसीडर करूं तो 16 वैल्यू आएगी. और जब मैं इसका क्रॉस कवरेज कर रहा हूं तो ये क्रॉस वैल्यू में ये दोनों को कर रहा हूं y एंड z, तो ये 1 1 आएगा और 3 2 आएगा. तो वैल्यू तो 2 ही जनरेट होगी, मेरा 1 1 और 3 2. ये देखो 1 के अगेंस्ट में 1 और 3 के अगेंस्ट में 2, यही जनरेट होगी, जबकि मेरी वैल्यू टोटल कितनी थी 16 थी. तो इसका कवरेज जो आएगा 2/16 आएगा. मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बट आई एक्सपेक्ट दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज 2/16, दैट इज 1/8. ओके, so that is something around 12.5%. Yes, very good. 2/16, so it is 1/8. So this is another example of the cross coverage that probably I'll leave it up to you. This is there in a slide, probably you can go through it. Okay, so I am just keeping some of them. Just at the last I would like to cover these 3, because as a verification engineer you should understand this very clearly. What is the meaning of dollar display, dollar strobe and dollar monitor? ठीक है, so let's understand it. Dollar strobe is a parameter which will display the value very end of the simulation time unit. आपका सिमुलेशन टाइम यूनिट के एंड में होगा. डॉलर डिस्प्ले जब भी आप लिखोगे तब भी होगा. इट इज सिंपली एज अ प्रिंट एफ. प्रिंट एफ आपने सी में जहां पे भी लिखा है वहां पे होगा. डॉलर स्ट्रोक कब होगा, वो आपका जब भी आपका सिमुलेशन अगर 4 नैनोसेकंड तक चल रहा है तो हर एक नैनोसेकंड 1 नैनोसेकंड 2 नैनोसेकंड 3 नैनोसेकंड 4 नैनोसेकंड उसके एंड में आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो डिफाइन करेगा. डॉलर डिस्प्ले आपका जब भी लिखा होगा तब वो डिस्प्ले करेगा. इट इज सिंपली एज अ प्रिंट एफ. डॉलर मॉनिटर कब है, जब भी इवेंट अगर होगी, जब भी चेंज होगा, चेंज मींस इवेंट, जब भी चेंज होगा तब वो इवोल्यूट होगा. हो सकता है कि आपका सिमुलेशन 4 नैनोसेकंड तक चल रहा है लेकिन आपका सेकंड और थर्ड नैनोसेकंड में वेरिएबल कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो डॉलर मॉनिटर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. डॉलर स्ट्रोब होगा क्योंकि आपका सिमुलेशन टाइम चेंज हो रहा है. तो जब भी आपका सिमुलेशन टाइम चेंज होगा तो उससे पहले आपका करंट सिमुलेशन टाइम में जो डिस्प्ले होना है वो हो जाएगा. डॉलर मॉनिटर तभी डिस्प्ले होगा जब चेंज होगा. हो सकता है 0 1 2 3 4, उसमें 0 1 2 3 में आपका वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ, 4 में चेंज हुआ,
तो वो चेंज होगा। ठीक है, सो उसके रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है। आई वुड लाइक यू टू रन दिस एंड गिव मी आंसर एज अ असाइनमेंट। ठीक है, आप इसको, मैं आपके स्लाइड में दे रहा हूं, आप इसको रन करके एज ए असाइनमेंट कंसीडर करो। ठीक है, 3 लिखा है डॉलर मॉनिटर। डॉलर मॉनिटर मैंने क्या बोला, जब भी देखो डॉलर मॉनिटर यहां पे कहां पे लिखा है, सॉरी, यहां पे अगर आप देखोगे तो डॉलर मॉनिटर कहां पे लिखा है, डॉलर मॉनिटर जस्ट ऑब्जर्व इट ओवर हियर, 4th लाइन में लिखा है, सॉरी 4th लाइन में लिखा है, तो उसमें ए बी है। तो जब भी ए और बी चेंज होगा तभी ये डॉलर मॉनिटर ट्रिगर होगा और वैल्यू डिस्प्ले करेगा। डॉलर डिस्प्ले तो हर बार करेगा। आपका फॉर लूप में फर्स्ट स्टेटमेंट है डॉलर स्ट्रोब। डॉलर स्ट्रोब आपका सिमुलेशन टाइम जब भी चेंज होगा उससे पहले वो डिस्प्ले करेगा। तो आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सिमुलेशन टाइम कब चेंज होगा। यूजुअली ये लूप है तो हर एक लूप में लूप का एग्जीक्यूशन एक सिमुलेशन टाइम में होगा। तो जब भी आपका लूप का इटरेशन चेंज होगा उस टाइम पे आपका सिमुलेशन टाइम चेंज होगा, क्योंकि आपने नीचे SS1 लिखा है एंड ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रख के आप करना, जिससे आपको पता चले जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अगर आपको इफ यू आर स्टिल फाइंडिंग एनी इश्यू देन टुमारो मे बी आई वुड लाइक टू नो द आंसर फ्रॉम यू बिफोर एग्जाम। अगर आपको नहीं पता चल रहा है देन आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। ठीक है, अभी एक और फीचर है सिस्टम वेरिलॉग में। ठीक है, फॉर्क जॉइन। फॉर्क जॉइन इज अ वन फीचर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन 2 मिनट। ठीक है, अभी इनिशियल जो स्टेटमेंट है वो आपका सिक्वेंशियल है। अगर आपने देखा होगा कि हर बार कोई भी चीज थी हम इनिशियल में ही लिखते थे। आई थिंक initial block is there where it is a sequential execution. यूजुअली जब भी आप वेरिफिकेशन करते हो आपका वेरिफिकेशन सीक्वेंशियल लैंग्वेज होगा। ठीक है, इसीलिए हम इनिशियल ब्लॉक में लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं वो इनिशियल ब्लॉक में लिखते हैं, और इनिशियल ब्लॉक में आपका हैश करके टाइमिंग इश्यू होगा। ठीक है, अभी आपका इनिशियल ब्लॉक जिसमें सीक्वेंशियल है, अभी सीक्वेंशियल के अंदर आप अगर आपको कॉन्करेंसी चाहिए, सी इनिशियल व्हेन इट इज रिटन, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब इनिशियल में लिखा है तो ये आपका टोटली सीक्वेंशियल है। आप इसको समझो, ये आपका सीक्वेंशियल है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस में जा रहा है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड, लाइक दिस। अभी सीक्वेंशियल के अगर अंदर मुझे कॉन्करेंसी चाहिए देन देयर इज अ स्टेटमेंट फोर्क जॉइन। ये उल्टा है। अगर आपने वेरिलॉग में देखा होगा तो वेरिलॉग में आप मॉड्यूल लिखते हो तो मॉड्यूल के अंदर ऑलवेज ब्लॉक लिखते हो। तो मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट है, लेकिन उसके अंदर जब ऑलवेज लिखते हो वो सीक्वेंशियल है। तो कॉन्करेंसी के अंदर सीक्वेंशियल, दैट इज योर ऑलवेज ब्लॉक, और सीक्वेंशियल के अंदर कॉन्करेंसी, दैट इज योर फोर्क जॉइन। उल्टा। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। देखो, जब भी हम डिजाइन करते हैं तब मॉड्यूल में लिखते हैं, तो मॉड्यूल में जो भी आप लिखते हो बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट है। अगर आपको सीक्वेंशियल चाहिए तो आप ऑलवेज ब्लॉक को यूज करोगे, बट ये उल्टा है। यूजुअली हम जब वेरिफिकेशन करते हैं तब सीक्वेंशियल होता है, तो ऑल द राइटिंग और ऑल द एग्जीक्यूशन विल बी इन सीक्वेंशियल मोड। और जब आप सीक्वेंशियल लिख रहे हो और उसके अंदर कॉन्करेंट चाहिए तो आपको फॉर्क जॉइन यूज करना है। ठीक है, अभी फॉर्क जॉइन में 3 वेरिएंट है, फॉर्क जॉइन एनी, फॉर्क जॉइन नन एंड फॉर्क जॉइन नन। हाँ, 1 मिनट, हेलो, हाँ maybe we can talk it later on. Right now I am taking a lecture. Okay, maybe we can talk it later on. Okay.
Okay. Now, what is we are talking about that fork join, where in a sequential I want a concurrence. Then I can write down fork join. A fork join having a three variant. Fork join normal, fork join any, and fork join none. There is a difference between these three. So let's try to understand fork join normal. So fork join normal, that means these two execute concurrently. So whatever there, तो ये मेरा fork है, ये मेरा join है, उसमें मैंने ये डॉट स्टेटमेंट लिखा है, तो ये सीक्वेंशियल नहीं होगा, ये दोनों एक साथ चलेंगे. सो दैट मीन्स कि जब इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तभी ये स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट होगा. ठीक है. सो दैट मीन्स कि अगर मैं देखूं तो ये #5 उसके बाद fork join में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट 5 नैनो सेकंड पे एग्जीक्यूट स्टार्ट करेगा, ये भी 5 नैनो सेकंड पे करेगा, और ये दोनों पैरेलल चलेंगे, और उसके बाद क्लॉक इक्वल टू 1 होगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्लॉक इक्वल टू 1 कब होगा? क्लॉक इक्वल टू 1 कब होगा? फॉर्क जॉइन में जो लिखा है वो पैरेलली चलेगा. ठीक है. और फिर क्लॉक इक्वल टू 1 होगा. ये जो नीचे का स्टेटमेंट, ये तो सीक्वेंशियली जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा बाहर है. क्लॉक इक्वल टू 1 जो है वो मेरा बाहर है. पर व्हाट आई वांट लाइक टू नो कि ये क्लॉक इक्वल टू 1, सॉरी, ये क्लॉक इक्वल टू 1 कब होगा? टाइम एट विच द क्लॉक इक्वल टू 1 इज somebody is Jyotsna is taking 15 nanosecond after 6 o'clock. I am not sure that how you have talk about the 6 o'clock. यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, अभी क्लॉक नहीं आया. सी, जब डबल हैज होता है तब हम क्लॉक की बात करते हैं. यहाँ पे तो एक ही हैज है, that means we are talking about a particular time. This has 5, that means 5 nanosecond. It is not 5 o'clock. Just try to understand. Okay. I think somebody has written Abhishek. Abhishek has written 6. See, here #5 is a time. It is not double #5. If it is double #5, then you need to consider it is a 5 o'clock cycle. I hope you are following me. ठीक है. तो यहां पे ये दोनों साथ में चलेगा, ये दोनों साथ में चलेगा. तो ये स्टेटमेंट तो 5 + 5 10 नैनोसेकंड में अपना काम खत्म कर लेगा. लेकिन इस स्टेटमेंट को 5 + 10, बिकॉज ये भी 5 पे स्टार्ट हुआ, ये भी 5 पे स्टार्ट हुआ, तो इसका एग्जीक्यूशन खत्म होने में 5 + 5 10 नैनोसेकंड में, इसका एग्जीक्यूशन खत्म होने में 10, तो 5 + 10 15 नैनोसेकंड. तो ये उसके बाद क्लॉक इक्वल टू 1 पे जाएगा. तो दैट मीन्स कि आपका क्लॉक इक्वल टू 1 कब होगा? So clock equal to 1 will be at 15 nanosecond. क्योंकि ये दोनों, as I said that, ये कैसे हुआ? ये 5 + 5 10 हुआ, but still this 5 + 10 15. तो ये खत्म हुआ, इन दोनों का खत्म होने के बाद ये जाएगा. So ultimately fork join you need to consider like this, कि आपने fork join में लिखा है ये मेरा एक है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है. जब तीनों खत्म हो गए उसके बाद ही ये ज्वाइन के बाहर जाएगा. आई होप यू आर विथ मी, कि जब तक फॉर्क ज्वाइन में जो लिखा है वो सारा खत्म नहीं हो जाता. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अ फॉर्क ज्वाइन ऑल, कि जो भी लिखा है ये सारा एक साथ खत्म नहीं हो सकता, उसके बाद ही वो फॉर्क ज्वाइन से बाहर निकलेगा. अभी इसका एक और वेरिएंट है, फॉर्क ज्वाइन एनी. ठीक है. फॉर्क ज्वाइन एनी, देखो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें भी पैरेलल चलेगा. ये फॉर्क ज्वाइन में जो लिखा है वो पैरेलल चलेगा, पर इसमें अगर आप देखोगे कि एनी, जो फॉर्क ज्वाइन में लिखा है उसमें से जो भी पहला खत्म होगा उसके बाद ये बाहर चला जाए. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर्क ज्वाइन में ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है.
पर ये तीनों में से कभी भी कोई भी एक एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो ये बाहर चला जाएगा। ये वेट नहीं करेगा कि तीनों खत्म हो, पहले के केस में तीनों खत्म होने के बाद ही करेगा। इसमें क्या है कि ये तीनों में से कोई भी एक खत्म हो गया तो ये बाहर चला जाएगा। तो अभी फॉर्क जॉइन एनी, ये एग्जीक्यूशन दोनों का साथ में चलेगा, पर बाहर जो भी पहला होगा उसके बाद निकल जाएगा। तो ये क्लॉक इक्वल टू 1 कब आएगा? यस, ये क्लॉक इक्वल टू 1 कब आएगा? आई वॉन्ट आंसर। 10, वेरी गुड, मेनी ऑफ यू आर करेक्ट। 10, क्योंकि ये स्टेटमेंट मान के चलो कि फॉर्क जॉइन के अंदर में 5 में घुसा, तो ये 5 में स्टार्ट हुआ, 5 में स्टार्ट हुआ, तो ये 5 + 5 10, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एज दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट है, ये बाहर चला जाएगा और क्लॉक इक्वल टू 1 करेगा। तो क्लॉक इक्वल टू 1 विल बी एट 10 नैनोसेकंड। अभी इसका थर्ड एक वेरिएंट है, ठीक है, कि फॉर्क जॉइन नन। फॉर्क जॉइन नन में क्या है कि ये अल्टीमेटली पैरेलल रहेगा, कि जब इसका फॉर्क जॉइन के अंदर का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तभी वो बाहर का भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब फॉर्क जॉइन के अंदर में जाएगा उसी टाइम पे वो बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर लेगा। सो दैट्स व्हाई ये क्लॉक इक्वल टू 1 5 नैनो, दैट मींस ये 5 नैनो सेकंड में अंदर गया, इसके इन दोनों का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और उससे बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेटमेंट का भी कर दिया। सो दैट्स व्हाई 5 नैनो सेकंड में अंदर गया, 5 नैनो सेकंड में यहां गया, 5 नैनो सेकंड में इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये कॉन्करेंट हो गया कि ये फॉर्क जॉइन के अंदर जो लिखा है और फॉर्क जॉइन के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वो तीनों कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कवर। Probably blocking, non-blocking, many of you know. If you want, then probably I can explain, otherwise the slide is there. That, so I want this you to go through it, this particular example. Okay, so these are the few reference. S-equal I have given, system Verilog user guide, you can go through it. So yesterday I have given you 2 website. S-equal था एक आपका testbench.in था, वो भी था। आपकी बुक आप ये फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा एक और वेबसाइट है ड्यूलस, मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूं। आई एम जस्ट ड्यूलस, ये ड्यूलस करके वेबसाइट है, उसमें भी आप डिफाइन कर पाओगे ट्रेनिंग। देखो वेरिलॉग है, सिस्टम वेरिलॉग एंड यूवीएम है, ठीक है। सो देयर इज अ वन अनदर वेबसाइट duelus.com, that also I am copying and I am writing it over here. That is also one of the website where you can find out the good material.